In this video, we will discuss about the palindromic sequence as well as the use of restriction endonuclease, which helps in cutting a specific palindromic sequence by inspecting the length of DNA. So let me start. First of all, the palindromic sequence. As we have discussed about the palindromic sequence in the earlier videos, means the segment of DNA which can be read from 5' to 3' and same in both डायरेक्शन, मीन्स दोनों डायरेक्शन में अगर हम उसे सेम मैनर में रीड करें देन इट इज नोन एज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और जब इस पैलिंड्रोम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल के थ्रू इसे देखें कि एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोम एक्चुअल में क्या होगा। तो यहाँ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज GAATTC। This is the palindromic sequence with the polarity 5' and the 3' end. This is the segment of DNA, and if we take its anti-parallel strand of the DNA, then it also consists of the strand having the same base as in case of the first DNA segment। मीन्स यहाँ से अगर हम 5 to 3' end अगर इसे स्टडी करें तो सीक्वेंस इज सेम GAATTC, and if we read this segment from 5 to 3' end then it is GAATTC। it means ऐसे सेगमेंट को अगर हम किसी भी डायरेक्शन से 5 to 3' इधर से 5 to 3' अगर रीड करते हैं then it shows that it is a palindromic sequence। Now we will take another example of the palindromic sequence, that is CCC and GGG. This is from the 5' to 3' end, and if we take the anti-parallel nature of the DNA then it is CCC and GGG. This is the next palindromic sequence। अब हम यहाँ देखेंगे कि इन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करने के लिए जो हम एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं, तो वहां रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मेन रोल क्या होता है। तो सबसे पहला कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऑलवेज कट द DNA मॉलिक्यूल within the DNA। मीन्स हमेशा डीएनए की जो कटिंग होगी वो स्पेसिफिक किसी भी मॉलिक्यूल यानी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बीच में से होगी। तो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज इट प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स। Sticky ends means which can help in the DNA for binding with one another. It also produce the blunt end. These are the features of the restriction endonuclease which a restriction endonuclease play in the segment of the palindrome। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमने दो प्रॉपर्टीज ली कि ये एक स्टिकी एंड भी प्रोड्यूस करेगा और एक ब्लंट एंड भी प्रोड्यूस करेगा। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं GAATTC के लिए, और यहाँ हम एक एंजाइम डिस्कस करते हैं, दैट इज EcoR1। दिस इज द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को अगर इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर अप्लाई करें तो ये हमेशा G और A के बीच में से DNA की स्प्लिटिंग करेगा एंड फ्रॉम दिस साइड आल्सो बिटवीन द G एंड A। और जब यहाँ से इसकी कटिंग होती है तो हम इसका रिजल्ट क्या देखते हैं, देयर विल बी एट द 5' एंड having only the G and then AATTC at 3' and below it there is the G which is bonded together with the C and the AA, this is AATTC, this is the 3' end। तो इस तरह से यहाँ पर हमें दो
and these two strands have the sticky ends, और इस तरह से ये sticky end को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक हमें स्मॉल स्ट्रेच मिलता है और दूसरा लार्ज स्ट्रेच। सो इट इज द स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए एंड इट इज नोन एज द large stretch of DNA, and these end produced here is known as sticky ends, और इन्हें sticky ends कहा जाता है। अब एग्जांपल लेते हैं सेकंड, दैट इज CCC and GGG। at this site the the restriction endonuclease work between the C and the G bone, and when this restriction endonuclease cut it, then the two segments are prepared here, and these two segments are CCC at 5' and 3', and GGG having the 5 and 3' end. Opposite to that there is present CCC at 5 to 3' and GGG again 5 to 3' end। मीन्स जब यहाँ पर सेम सेगमेंट्स की फॉर्मेशन हो रही है तो इसे हम बोलते हैं ब्लंट एंड। इट इज नोन एज blunt end. There are two different examples, one having the sticky end palindromic sequence and another is the blunt end. Next important thing कि जब sticky end की formation होगी, जब EcoR1 इस palindromic sequence को within the DNA molecule कट करता है और sticky end की formation कर रहा है, तो उस टाइम यहाँ बॉन्डिंग पर क्या इफेक्ट होगा। तो हम यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो नाइट्रोजिनस बेस सेम डीएनए मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट है, दे हैव फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एंड सेकेंड थिंग कि एंटी पैरेलल चेन्स आपस में जब अटैच होती हैं देन दे हैव द हाइड्रोजन बॉन्ड, और इनके बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जब यहाँ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट किया तो हमें एक रिजल्ट देखने के लिए मिला कि यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी ब्रेक हो गया और हाइड्रोजन बॉन्ड भी। सो वी कैन राइट हियर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड विल ब्रेक, और यहाँ पर दोनों बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और दोनों सेगमेंट्स स्टिकी एंड की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारा ब्लंट एंड का। तो ब्लंट एंड में हमने स्टडी किया कि विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल कटिंग हो रही है, लेकिन रिजल्ट क्या है यहाँ पर कि एक ब्लंट एंड की फॉर्मेशन हुई। अगेन देयर विल बी द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन दिस डीएनए नाइट्रोजिनस बेसिस एज वेल एज दे हैव द हाइड्रोजन बॉन्ड विद देम। तो यहाँ जब ब्लंट एंड की फॉर्मेशन होगी तो ओनली फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड विल ब्रेक। तो इन केस ऑफ blunt end formation only phosphodiester bond will break और हाइड्रोजन बॉन्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है और कैसे कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ वर्क करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कोई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है और उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से हम आरडीएनए की फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का कि आरडीएनए फॉर्मेशन के लिए विच टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज नीडेड हियर, एंड सेकेंड थिंग द टाइप ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फॉर्म हियर। फर्स्ट इज आरडीएनए फॉर्मेशन, मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन किस तरह से होगी। तो यहाँ हम दो अलग अलग नाइट्रोजिनस बेसिस के साथ डीएनए स्ट्रैंड्स को कंसीडर करते हैं। दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट विच इज नेम्ड एज द फॉरेन डीएनए, एंड द सेकेंड वी आर टेकिंग हियर द वेक्टर डीएनए। This is the vector DNA, and we select here the two specific bases। दो स्पेसिफिक जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उनको हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सिमिलर होंगे, फॉरेन डीएनए में भी और वेक्टर डीएनए में भी। तो सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं GAAT
G, A, T, T and C, and with this G, A, T, T and C. These are the two segments of the DNA. One is the foreign DNA and another is the vector DNA. अब हम यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंड द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस which inspect the length of palindrome, that is GAATTC, is EcoR1. The same enzyme is used for both the DNA because दोनों DNA के पास सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट है. देन जैसे ही EcoR1 यहाँ एक्ट करेगा, रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पर G और A के बीच में से स्प्लिटिंग, एंड हियर ऑल्सो G और A के बीच में स्प्लिटिंग हो जाएगी. तो यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन होगी. देन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ G बचेगा. वाई? क्योंकि यहाँ EcoR1 ने अपनी कटिंग स्टार्ट कर दी. फ्रॉम हियर ऑल्सो G और A के बीच में कटिंग स्टार्ट होगी. तो सबसे पहले यहाँ जब ये कटेगा तो ये पार्ट जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एंड दिस कंसिस्ट ऑफ C, T, A. दिस इज द सेगमेंट. सेकेंड, वेक्टर डीएनए में भी G और A के बीच में EcoR1 एक्ट करेगा और यहाँ भी G और A के बीच में वेक्टर डीएनए को कट करेगा. देन हियर ऑल्सो द सेगमेंट लाइक दिस. This is the vector DNA with one large and one small fragment. Again here A, T, C, and this consists of only G. इस तरह से जब दो DNA EcoR1 की हेल्प से कट होते हैं इन द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो यहाँ हम देख रहे हैं एक स्मॉल और एक लार्ज फ्रेगमेंट है. तो उस केस में इस एंड को, इन जो एंड्स यहाँ पर बने हैं, दीज आर नेम्ड एज द स्टिकी एंड्स. इन्हें हम स्टिकी एंड्स का नाम देते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्टिकी एंड्स. अब रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ से इस एंड को हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम. डीएनए लाइगेज यहाँ पर एक्ट करेगा और इस स्टिकी एंड को इस फॉरेन डीएनए के एंड के साथ ज्वाइन करने में हेल्प करता है. देन वी विल गेट द सीक्वेंस दैट इज हैविंग द rDNA, मीन्स द वेक्टर डीएनए गेट जॉइन with this foreign DNA, and we get G, A, T, C, and same is here G, A, T, C. So this is all about the rDNA formation, and this segment is known as rDNA, means it is known as the recombinant DNA. इसके बाद आता है कि हम किसी भी स्पेसिफिक डीएनए की कंस्ट्रक्शन, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करते हैं तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें हम किस तरह से यूज करेंगे. तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट थिंग इज कि कैसे डीएनए की फॉर्मेशन हुई, प्लस में हमें उसे टेक्नोलॉजिकली उसे किस तरह से अप्लाई करना है. तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा rDNA टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट इज द rDNA. दिस वन इज rDNA टेक्नोलॉजी. In this rDNA technology, we will use the plasmid also, means the foreign DNA is added into the plasmid DNA of the vector. So we are considering here first of all, this is the alien DNA. Alien means foreign DNA, and with this we are using here, this is the plasmid of the vector DNA. And the plasmid we are using here is plasmid of vector. वेक्टर का प्लाज्मिड है. अब यहाँ देखते हैं कि प्लाज्मिड कहाँ से है. प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन
द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल को हमने यहाँ वेक्टर की तरह यूज किया, उसमें एक डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम यहाँ क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे कि इस एलियन डीएनए के सेगमेंट को इस प्लाज्मिड डीएनए के अंदर टैग करेंगे। तो उससे सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सबसे पहले एक एंडोन्यूक्लियस यहाँ अप्लाई करेंगे एंड दैट एंडोन्यूक्लियस कट बोथ द एलियन डीएनए एज वेल एज द प्लाज्मिड डीएनए। बट एक क्राइटेरिया रहेगा कि वो हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही रीड करके उसे कट करेगा। तो सबसे पहले यहाँ हम इसे कट कर देते हैं। दिस वन गेट कट लाइक दिस, means short fragments of the DNA is formed here, and when we take the plasmid, then this plasmid get cut into the segment, और यहाँ से ये इस तरह से ये plasmid भी कट हो गया। अब क्या किया जाएगा, हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं कि हम यहाँ पर इस टाइप का प्लाज्मिड जो एलियन डीएनए है उसे इस प्लाज्मिड में ऐड करेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए। अब यहाँ हम लाइगेज एंजाइम यूज करते हैं, लाइगेज, एंड दिस लाइगेज जॉइन दिस एलियन डीएनए विद दिस प्लाज्मिड डीएनए। देन व्हाट विल हैपन हियर, दिस इज द प्लाज्मिड and with this plasmid there is the ligation of the alien DNA segment. You can see here, this is the alien DNA which get tagged with the plasmid DNA, and this DNA is known as the rDNA. इसे हम क्या कहेंगे, rDNA। अब इस प्लाज्मिड को हम एक प्लाज्मिड लेस बैक्टीरिया के अंदर शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ जो बैक्टीरिया हम यूज करेंगे, दैट बैक्टीरिया इज ई कोलाई। इस ई कोलाई बैक्टीरिया में यहाँ पर हमने एक प्लाज्मिड जो हमने यहाँ पर इसे रिकॉम्बिनेट बनाया था वो हमने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड दिस बैक्टीरियल सेल हैव इट्स ओन द न्यूक्लियोइड रीजन, दैट इज द क्रोमोसोमल पार्ट। Then this transfer of the recombinant DNA into the bacterial cell is known as transformation. Known as transformation. After the transformation, this bacterial cell have the ability to divide. Then the cell division will take place here and produce the different copies of the recombinant DNA which get introduced during the transformation. इस bacterial cell में division होगा and this division will give rise to the copy of the recombinant DNA जो transformation के दौरान इसमें insert की गई थी। So this is the cell multiplication, यहाँ पर cell multiplication हुआ and it will result into the formation of multiple copies of the rDNA. So this is all about the rDNA technology. In the next video we will discuss about the gel electrophoresis.